Hallelujah, hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit, in our midst. Hallelujah. हमें से हर एक को अपनी आत्मा से भर परमेश्वर. Hallelujah. तेरा वचन कहता है कि तू भरपूर रीति से हमें देता है. Abundantly you have given your spirit. Every person, full measure. Hallelujah. Thank you, Lord. We cry out to you, Holy Spirit. We need you, Lord. We need you. We need your presence, Father. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण ये आत्मा और ये जीवन हाथों को उठा के मैं घुटनों पे शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ पवित्र आत्मा पवित्र घुटनों पे आ रहा हूँ शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ पवित्र आत्मा
Spirit. We welcome you, Lord. Hallelujah, hallelujah. तू हमारे बीच में है प्रभु इस वक्त. तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि तूने हम में से हर एक को भरा है अपनी सामर्थ से, अपनी अग्नि से, अपने प्रेम से प्रभु. सभी आत्मा के फलों से प्रभु तूने हमें भरा. ओ प्रभु अपनी सामर्थ से हमें चला प्रभु. Oh God, we yearn, we hunger, we thirst for your righteousness. Oh God, fill each and every one of us today, Lord. As we stand here to worship you, as we lift our hands, as we call out to you, God, you fill us all, Lord. Hallelujah. तुझे बुलाते हैं पवित्र आत्मा, आ और हमें भर दे. We welcome you, we welcome you, we welcome you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ हमें भर दे, भर दे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर ने वादा किया है, हालेलुया, that I will give you joy, hallelujah, oil of gladness, hallelujah, and beauty for ashes, hallelujah. He has spoken, hallelujah. We thank you, Lord, thank you, Lord. और तेरी महिमा करने के लिए प्रभु, hallelujah, और जय जयकार से हम प्रभु आए हैं प्रभु, hallelujah. तेरे वचन को बोलकर, ओ हालेलुया, तेरी पवित्र आत्मा से भर के तेरे वचन को बोलकर, हालेलुया, तेरी महिमा करेंगे. आमेन, आमेन. बंदगी तू मेरी, करूं मैं हमदो सना तेरी. जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाँ दे दिया. बंदगी तू मेरी, करूं मैं हमदो सना तेरी. जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाँ दे दी. तेरे नाम की हो जय जयकार. यीशु नाम की हो जय जयकार. तेरे नाम की हो जय जयकार. यीशु नाम की हो जय जयकार. सजदा करूं तुझको, तेरा नाम है सबसे ऊंचा. तू अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना. सजदा सजदा करूं तुझको, तेरा नाम है सबसे ऊंचा, ऊंचा. अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना. तेरे नाम की हो जय जयकार. यीशु नाम की हो जय जयकार. तेरे नाम की हो जय जयकार. यीशु नाम की हो जय जयकार. गाऊंगा मैं सदा तेरी हमदो सना, होठों से अपने में स्तुति करूं सदा. राजाओं का राजा, जिंदा मेरा खुदा, मेरे गुनाह लिए सूली पे तू चढ़ा. गाऊंगा मैं सदा तेरी हमदो सना, होठों से अपने में स्तुति करूं सदा. राजाओं का राजा, जिंदा मेरा खुदा, मेरे गुनाह लिए सूली पे तू चढ़ा. तेरे नाम की हो जय जयकार.
यीशु की. Hallelujah. Thank you, Lord, for you gave yourself. Hallelujah. Hallelujah. You are the lamb that was slain. You are the lamb that was slain for all eternity, Lord. Hallelujah. For everyone, Lord. All humanity, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. You have taken it all. You said it is finished. You said sab khatam hua. Oh, hallelujah. हर चीज का अंत हुआ, हर फेलियर का अंत हुआ, हर बीमारी का अंत हुआ. सब कुछ ले लिया तूने, ओ परमेश्वर. ओ धन्यवाद तेरा. Thank you, God. Thank you, thank you, thank you. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the
Thank you, God. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your grace, your unending grace, Lord, the unmerited favor. We do not deserve it, God. We did not deserve, but you gave, God. You gave. You gave. You gave your love. You showed us. You showed us your love in this, that you gave your own beloved Son, Lord, to save us all, that we do not perish. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु कि तूने अपने बेटे को हमारे लिए दिया. Because that gave us deliverance, God. We were delivered. We were set free. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your sacrifice. Thank you, Father. Thank you, Lord. Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया. Nice to be with you on Sunday morning. और ये अच्छी बात है कि रविवार की सुबह हम आपके साथ है. Let's close our eyes as we begin to pray. और आइए हम अपने आंखों को बंद करें जैसे हम प्रार्थना करने की शुरुआत करते हैं. Father, in the name of Jesus, और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से. open our eyes to understand. हमारे आंखों को खोल कि हम समझ पाए. Father, give us a new spiritual understanding. और हमें एक नई आत्मिक समझ दे. Help us, Lord, to sit in heavenly places as we listen what you have to say. और मदद करो कि हम स्वर्गीय स्थानों में बैठ पाए और सुन पाए आप जो कहना चाहते हो वो. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. We surrender every viewer unto your hands today. हम हर एक जो व्यक्ति देख रहा है उसको आपके हाथों में सौंपते Master, हैं. I pray, take total control over their life and over their family. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि उनके पूरे परिवार पे और उनके जीवन पर आप नियंत्रण ले. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Let's turn our Bible to Psalms 110 verse 1 to 7. और आइए हम अपने बाइबल को खोले भजन संहिता 110 और 1 से लेके 7वीं आयत. Okay, we are going to read it in Hindi. और हम हिंदी में पढ़ेंगे. And I want you to listen to every verse today. और मैं चाहता हूँ कि आप हर एक जो है वचन को सुने आज. ठीक है. मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं. पूरा पढ़ो सर. तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा. तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर. तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छाबली बनते हैं. तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है. यहोवा ने शपथ खाई और न पछताए गया. तू मिल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है. प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा. वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा. रणभूमि शवों से भर जाएगी. वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा. वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा. इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. और मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं. Today we are going to go in literally in a spiritual depth session. और आज हम एक आत्मिक मनोस्थिति के अंदर जाएंगे. This may definitely challenge your traditional thoughts. और ये जो आपके जो सोच विचार है
उसको ये चुनौती दे सकता है। The thoughts which were traditionally there before you are going to get a challenge today. और ये जो सोच विचार है जो एक प्रथा के समान आपके मन में है उसको एक चुनौती मिलेगी आज। From the day we are born again till today, we always thought Satan is the enemy of God. और जब से हमारा जन्म हुआ हम यही हमेशा सोचते थे कि शैतान परमेश्वर का एक शत्रु है। But I want to tell you something, Satan is not God's enemy. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान परमेश्वर का शत्रु नहीं है। We need to understand as a believer, different enemies we have. और हमें ये समझना है एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास बहुत सारे शत्रुएं हैं। But who actually is the enemy of God? परंतु परमेश्वर का सच में शत्रु कौन है? And now we as a children of God have to understand this. और अब हम जो परमेश्वर की संतान हमें ये समझना है। There is no verse in the Bible which tells that Satan is God's enemy. और बाइबल में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो ये कहता है कि शैतान परमेश्वर का शत्रु है। God has never called devil as the enemy. परमेश्वर ने कभी शैतान को अपना शत्रु करके नहीं बुलाया है। Let's understand Satan is not the rival of God. और आइए हम समझे कि शैतान जो है परमेश्वर का कोई विरोधी नहीं है। Why? Because he is already defeated. क्यों? क्योंकि वो पहले ही हारा हुआ है। His destination is already decided. और उस अंत में उसकी मंजिल पहले से ही उसका निर्णय ले लिया गया है। Jesus defeated him on the cross. यीशु मसीह ने उसको क्रूस पर हरा दिया। Now no more he can stand before God and be a rival. और अभी वो परमेश्वर के सामने खड़े होकर विरोधी नहीं रह सकता है। Bible only calls him as the accuser of the brethren. और बाइबल सिर्फ उसको जो है भाइयों पर दोष लगाने वाला करके कहता है। But Bible never calls the Satan or the devil the enemy of God. परंतु बाइबल शैतान को कभी परमेश्वर का शत्रु करके नहीं बोलता है। I want you to understand who can be the enemy. और मैं चाहता हूँ कि आप समझे कि कौन शत्रु हो सकता है। Who is our enemy? Who can be our enemy? और कौन शत्रु हो सकता है? कौन हमारा शत्रु है? Our enemy can only be that person who can compete with us at our level. और हमारा शत्रु वही हो सकता है जो हमारे ही स्तर पर हमसे मुकाबला कर सकता है। Satan cannot compete God. और शैतान परमेश्वर से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। He is a defeated one. वो हारा हुआ व्यक्ति है। Now Psalm 110 verse 1 is saying, God is saying, sit at my right hand until I make your enemies a footstool of your feet. और भजन संहिता 110 में परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। I want to tell you who is this enemy God is mentioning. और कौन है ये व्यक्ति जिसको परमेश्वर शत्रु करके बुला रहा है? Definitely he is not Satan. और निश्चित रीति से ये शैतान नहीं है। Whom God is talking about, who he is telling him, whom he is addressing to sit at his right hand. परमेश्वर किसके बारे में बात कर रहा है? किसको अपने दाहिने हाथ पर बैठने बोल रहा है? Now listen to me very clearly. और अब सुने मुझसे बहुत ही निश्चित रीति से। If somebody becomes our enemy, that means he has an ability to compete with us and to fight with us. और अगर कोई हमारा शत्रु बनता है तो इसका ये मतलब है कि वो उसके पास ये ताकत है और ये क्षमता है कि वो हमसे मुकाबला कर सकता है और हमसे लड़ सकता है। Now the devil also knows he cannot compete with God. और शैतान को भी पता है कि वो हमसे मुकाबला नहीं कर सकता है, वो परमेश्वर से मुकाबला नहीं कर सकता है। If you read the book of Job clearly in chapter 1, Satan goes in God's presence. और अय्यूब की किताब पढ़ोगे तो बहुत ही निष्पक्ष रीति से देखोगे कि पहला अध्याय में शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। Who can an enemy go in the presence of his enemy? और कौन सा शत्रु दूसरे शत्रु के उसके दूसरे शत्रु के उपस्थिति में जाता है? According to the Bible in the book of Job, Satan goes to present himself. और बाइबल में अय्यूब के किताब के अनुसार शैतान अपने आप को दिखाने जाता है। He is the fallen one. और वो गिरा हुआ व्यक्ति है। I want to tell you today many people
are talking about the war between Iran and Israel. और आज बहुत सारे लोग जो है ईरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध है उसके बारे में बात कर रहे You हैं। might have learned into history, First World War, Second World War. और आपने इतिहास में सीखा होगा पहला जो महायुद्ध। महायुद्ध हुआ होगा और दूसरा संसार का जो महायुद्ध हुआ है। I want to tell you this war upon the earth from where it originated. और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये युद्ध कहाँ आया इस धरती में। This war was originated in heaven. और ये युद्ध स्वर्ग से शुरू हुआ था। The first war which took place in heaven. और पहला युद्ध स्वर्ग से शुरू हुआ था। Which was this war? कौन सा युद्ध था ये? Satan wanted to elevate his throne above the throne of God. और शैतान अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर लगाना चाहता था। There was a war. There means that was a war of competition. और वो एक मुकाबले की जो है युद्ध हुई थी। What exactly is the war? The war is nothing but thinking of ourselves superior than the other one. और ये युद्ध क्या है? युद्ध ये है कि हम अपने आप को दूसरे से ज्यादा बड़ा समझ रहे हैं। So in this war, Satan was defeated. और ये युद्ध में शैतान हार गया। And what was the punishment given to Satan and his followers? और क्या दंड दिया गया था शैतान और जो भी उसके पीछे चल रहा है उनको? God thrown them out from heaven and pushed them upon the earth. So Satan along with his angel came upon the earth. और परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से निकाल दिया और धरती पर फेंक दिया और शैतान और उसके जितने भी जो उसके साथी थे वो सब धरती पर आ गए। I hope so you are able to understand the first war which exactly took place. मैं आशा रखता हूँ आप ये समझ गए होंगे जो सबसे पहला युद्ध हुआ था। How and what was the motive behind this war? और कैसे और क्या उद्देश्य था इस युद्ध के पीछे? The motive was very, very clear that the throne should be above the throne of the opponent. और उद्देश्य बहुत ही निश्चित था कि हमारा सिंहासन हमारे शत्रु के सिंहासन के ऊपर होना चाहिए। Now when God tells you to sit there upon the throne, when you read about the throne, don't think the physical throne. It talks about a symbolic meaning behind it. और जब ये सिंहासन के बारे में बात करते हैं, जब परमेश्वर इस सिंहासन के बारे में बात करता है तो ये कोई शारीरिक सिंहासन नहीं है परंतु एक आत्मिक सिंहासन के बारे में बात कर रहा है। No, it is symbolic. ये एक दृष्टिकरण है जिसके बारे में बात So की जा रही every है। word which is used in the Bible, my dear friends, it is a symbolic language also. और हर एक शब्द जो बाइबल में यूज किया जा रहा है वो एक दृष्टिकरण के रूप से भी बात की जाती है। So the throne talks about power and authority. तो इसीलिए सिंहासन जो है वो सामर्थ्य और अधिकार के बारे में बात करता So है। when Satan wanted to lift his throne, exactly what he wanted to do. और जब शैतान को अपना सिंहासन ऊंचा करना था तो उसको सही में क्या करना था? He wanted to overpower the authority of God. उसको परमेश्वर के अधिकार के ऊपर जाना था। That is what Bible talks about. ये बाइबल बात करती है। And this is the essence and the foundation of the war. और यही जो है जो युद्ध है उसकी पूरा क्यों हुआ था वो है। Now if you see the first war which took place upon the earth where Cain killed Abel. और अगर आप पहला युद्ध जो देखोगे जो संसार में हुआ था वो तब था जब केन ने हाबिल की हत्या की थी। Now listen, whenever the war takes place on the earth, the one who loses his physical life. और याद रखिए जब भी इस धरती के ऊपर जो है युद्ध होता है तो जो हारता है वो अपने शारीरिक प्राण है जो उसको वो हार जाता है, वो उसको गंवाना पड़ता है उसके प्राण, and he gets killed. और उसकी हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। So when there was a war between Cain and Abel, और जब केन और हाबिल के बीच में लड़ाई हुई थी, what was the war? क्या लड़ाई थी वो? Cain said, how Abel can be superior to me? केन कहता है कि कैसे हाबिल मेरे से बेहतर हो सकता है? How Abel's offering was better than my offering given to God? कैसे हाबिल का अर्पण मेरे अर्पण से बेहतर हो सकता है? This जो was the परमेश्वर की basic तरफ है। reason for the war. यही था
मूल कारण युद्ध के पीछे। So don't remember that the war originated from heaven. और याद रखिए युद्ध स्वर्ग से ही शुरू हुआ था। And now in this war, Satan is already defeated. और अब इस युद्ध के अंदर जो है शैतान पहले से ही हार चुका है। Satan knows it better that he is a defeated और one. शैतान को बहुत अच्छे से पता है कि वो हारा हुआ व्यक्ति है। So Satan is not the rival of God today. इसीलिए शैतान जो है वो परमेश्वर का विरोधी अभी नहीं है। Now we are going to stop at 110 and verse 1 and we are going to go to the next scripture to understand who is the enemy of God. और अभी हम 110 के पहले अध्याय पे रुक जाएंगे और अगले वचन पे जाएंगे जिससे हम ये समझ पाए कि शायद परमेश्वर का शत्रु कौन है। I already explained you, he is the defeated one. और मैंने आपको पहले ही ये बता दिया है कि वो हारा हुआ है। That means Psalms 110 verse 1 when he talks about the enemy, he is not referring to Satan. और इसका ये अर्थ है कि भजन संहिता 110 में पहला अध्याय जब शत्रु के बारे में बात करता है तो वो शैतान के बारे में नहीं बात कर रहा है। Because verse 2 onwards, if you read clearly, you will find the enemies of Israel. और क्योंकि दूसरे अध्याय से अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि इस्राएल के शत्रुओं के बारे में बात कर He रहा is है। talking about the physical enemy. और वो शारीरिक शत्रुओं के बारे में बात कर रहा Now है। let's go further to understand this, who is God's enemy. और आइए आगे हम जाए ये समझने के लिए कि परमेश्वर का शत्रु कौन है। How many people have understood today Satan is not God's enemy? कितने लोग ये बात समझ गए कि शैतान परमेश्वर का शत्रु नहीं है। The traditional thought which we carry till now, Satan is God's enemy, there is no single verse defining that. और जो हमारी एक प्रथा चलते आ रही है जिससे हमें ये विचार है कि शैतान परमेश्वर का शत्रु है, वो वैसा नहीं है। अब तक कोई भी ऐसा वचन नहीं है। Let me tell you, by accepting such kind of teaching and thought, you are basically elevating Satan to the level of God. और ऐसा शिक्षण और सोच लेकर अगर आप चलोगे और स्वीकार करोगे इसको तो आप शैतान को परमेश्वर के स्तर पर लेकर चले जाओगे। So that Satan and the devil become so happy that you have elevated him in your life and made him equivalent to God. और शैतान इतना खुश हो जाता है कि आपने उसको इतना ऊपर लेकर चले गए कि आप उसको परमेश्वर के स्तर पर लेकर चले गए। Today you have known the truth. आज आपको सत्य पता चला है Satan is not God's enemy. कि शैतान परमेश्वर का शत्रु नहीं Then है। who is the enemy of तो God? कौन है परमेश्वर का We शत्रु? are going to learn this very systematically. और अभी हम इसको सीखेंगे। Let's look at Matthew chapter 6. और मत्ती के 6वें अध्याय पे हम देखेंगे So who is God's competitor? कौन है परमेश्वर का शत्रु। Matthew chapter 6 and verse 24. और मत्ती का 6वां अध्याय और 24वीं आयत हम This is पढ़ेंगे। what Jesus is telling his disciple and those who are listening to his message. और यीशु मसीह जो है अपने चेलों को कह रहे थे और जो उसके संदेश को सुन रहे हैं उसे And what he is saying? क्या बोल रहे हैं वो? He is saying before you there are two masters. और वो कह रहे हैं कि आपके सामने दो स्वामी हैं And you cannot serve them both. और आप दोनों की सेवा नहीं कर सकते। If you serve both, it is not going to be possible. और अगर आप दोनों की सेवा करना संभव है। And he says, either you will hate one and love other, या तो आप एक से बैर रखोगे और दूसरे से प्रेम करोगे, or या you will become the devotee of one and despise the other. या तो आप जो है दूसरे के साथ आप मिले रहोगे और दूसरे को तुच्छ जानोगे। मतलब तुम किसी की भक्ति करोगे और किसी को तुच्छ जानोगे। यीशु मसीह जो कह रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो परमेश्वर के राज में खड़ा है, जो यीशु मसीह का संदेश सुनता है, जो यीशु मसीह का प्रचार सुन रहा है, उनको यीशु मसीह मत्ती 6:24 में कहता है कि आपके पास दो स्वामी आपके सामने हैं। अब वो ये भी कहता है कि आप दोनों स्वामी की सेवा नहीं कर सकते साथ में, और ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप एक से ज्यादा प्यार करोगे और एक से कम प्यार करोगे।
दोनों के प्यार को आप एक लेवल पर नहीं रख सकते। इसीलिए वो कहता है आप दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक की आप भक्ति कर सकोगे तो दूसरे को आप तुच्छ जानोगे। आई होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं आशा रखता हूँ आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो ही सेड यू कैन नॉट सर्व बोथ गॉड एंड मैमन। इसलिए कहता है कि आप जो है दोनों परमेश्वर और पैसे की सेवा नहीं कर सकते। दैट मीन्स गॉड इज मेकिंग मनी इक्वल टू हिम। इसका अर्थ यह है परमेश्वर जो है धन को अपने जो है एक स्तर पर परमेश्वर और धन अपने आप को रख रहा है। परमेश्वर ये कहता है कि जगत का पैसा और मैं एक ही लेवल पर हूं। ये दो स्वामी यीशु कहता है, एक परमेश्वर है और दूसरा जगत का पैसा। ये दोनों स्वामी हैं। ये जो पैसा है परमेश्वर के बराबरी का है। ये जो पैसा है परमेश्वर का कॉम्पिटिटर है। मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि इस बात को आप समझ सके। Satan is not the enemy, my dear friend. और शैतान शत्रु नहीं है मेरे प्रिय मित्रों। God is never saying that Satan is the master of your life. और परमेश्वर कभी ये कह ही नहीं रहा है कि शैतान जो है आपके जीवन का स्वामी है। Either God or money. और या तो परमेश्वर या धन। This is very, very interesting. ये बहुत ही दिलचस्पी की बात I है। hope so you are enjoying what I am teaching. मैं आशा रखता हूँ आप आनंद ले रहे हैं जो मैं सिखा रहा हूँ उसका। Why? Because we are going little deeper in the word. क्यों? क्योंकि हम वचन में थोड़ा और गहराई में जा रहे हैं। We have already cleared our thoughts that Bible never says Satan is the competitor of God. हमने हमारे विचार को जो है विचारों को ये क्लियर कर दिया है कि बाइबल जो है ये नहीं कहती है कि शैतान परमेश्वर का शत्रु है। Now, I am going to build upon this thought. और अब मैं इसके ऊपर इस विचार के ऊपर और बात If करूंगा। Satan is not the competitor, then who is the competitor? अगर शैतान परमेश्वर का शत्रु नहीं है तो कौन है? You know, competitor, प्रतिस्पर्धी. और प्रतिस्पर्धी ये है Who कॉम्पिटिटर। is a competitor? Same level people. कौन एक प्रतिस्पर्धी है जो You cannot जो compete with a एक ही small स्तर पे child. लोग हैं। आप एक छोटे बच्चे के साथ स्पर्धा में नहीं जा You सकते हो। cannot compete with an old man. और आप अपने आप को एक बूढ़े व्यक्ति के साथ तुलना नहीं कर सकते। Why? Because he has no strength as compared with you. क्यों? क्योंकि उसके पास कोई सामर्थ नहीं है आपसे अगर तुलना की जाए तो। So same way, Satan doesn't have strength to stand in level with God. वैसे ही शैतान के पास ताकत नहीं है खड़ा रहने के लिए परमेश्वर के सामने। So Jesus is saying here, इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर कह he's रहे हैं, teaching his disciple, वो अपने चेलों को सिखा रहे हैं। he's teaching those people who have gathered to hear him. और जो लोग हैं वहां पर इकट्ठा हुए हैं उनको सिखा रहे हैं वो। And in the same way, today you have gathered before him and Jesus is teaching you. और वैसे ही जब आप उनके सामने इकट्ठा हुए यीशु मसीह आपको सिखा रहे हैं। As you are listening to this through the YouTube, और जैसे आप YouTube पर ये सीख रहे हो, Jesus is putting a question before you. यीशु मसीह आप पर एक सवाल पूछ रहे In this हैं। question is talking about two masters. और यहाँ पर दो स्वामी के बारे में लिखा जा When रहा he's है। talking about two masters, both masters are equal. और जहाँ पर दो स्वामी के बारे में लिखा जा रहा है, दोनों स्वामियां जो है एक ही स्तर पे है। One is God and one is money. और एक है परमेश्वर और दूसरा है धन। One is God, one is money. एक है परमेश्वर, दूसरा है धन। Now, why money is the competitor of God? अभी क्यों धन जो है वो परमेश्वर के का प्रतिस्पर्धी है? This is very interesting. ये बहुत ही दिलचस्पी की बात है। Why Jesus is saying like this? क्यों यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं? He never says, "Are you following Satan वो or ये- loving him?" Nobody can love Satan. वो ये नहीं कह रहे कि क्या आप शैतान के पीछे चल रहे हो, क्या आप शैतान से प्यार करो। कोई शैतान से प्यार नहीं करता। He is saying that whether you love him or whether you love money. क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हो या आप धन से प्रेम कर रहे Now, हो? वो this ऐसा is कह the रहे हैं। point of difference और यही अंतर का भाग है between you and the people of the world. आप और संसार के लोग में। People of God love God परमेश्वर के लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं and they do not love money. और आप
ये धन से प्रेम नहीं करते। But why money is the competitor? और क्यों धन जो है वो एक प्रतिस्पर्धी है? Why Jesus is saying that the money is the competitor? क्यों यीशु मसीह कह रहे हैं कि धन जो है वो एक प्रतिस्पर्धी है? Jesus is teaching because God knows nothing can be done upon the earth without money. यीशु मसीह सिखा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ये जानता है कि धरती पर कुछ भी नहीं किया जा सकता है बिना पैसे के। So if you want to do anything on the earth, money is required. और अगर आपको धरती पर कुछ भी करना है तो धन आवश्यक है। Every blessing which God wants to give you in your life और हर एक आशीष जो परमेश्वर हमें हमारे जीवन में देता है is by the way giving you money. और वो एक तरीके से धन देना है। Okay, no, means God is blessing you. Behind every blessing, when He says He's blessing you, means what? He is adding money in your life. अच्छा, और परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है, इसका ये अर्थ है कि वो आपके जीवन में धन को जोड़ रहा है। Without money, you cannot understand blessing. तो धन के बिना आप आशीष को नहीं समझ पाओगे। Okay, if you want good health, अगर आपको अच्छी स्वास्थ्य चाहिए, God will bless you with good money such that you can have good food and good lifestyle. और अगर आपको अच्छी स्वास्थ्य चाहिए तो परमेश्वर आपको अच्छे धन से आशीषित करेंगे जिससे आप अच्छा भोजन और एक अच्छी जीवन शैली जी पाओ। Yes, if you are not blessed with money, what will happen? Your lifestyle is going to go down. और अगर आप अच्छे धन से जो है आपको आशीष नहीं मिलेगा तो आपका जीवन शैली नीचे गिर जाएगा। If you want a house, और अगर आपको घर चाहिए, how God is going to give you? परमेश्वर कैसे घर देगा आपको? By giving you money. आपको धन देकर। Now how money is being given by God to you? और धन कैसे आपको परमेश्वर दे रहा है? God blesses the work of your hand. प्रभु आपके हाथों के काम को आशीषित करते हैं। God opens the door which is locked before you. और जो आपके सामने दरवाजा जिस पे ताला लगा दिया है परमेश्वर को खोलते हैं। That means everything what blessing is been counted is nothing but money. इसका मतलब है हर एक आशीष जो गिनी जाती है वो कुछ नहीं पर पैसा है। Yes, if you want a peaceful life, और अगर आपको एक शांति का जीवन चाहिए without pressure, और बिना किसी दबाव के, the Lord will bless you in a proper way such that you don't overwork or overstrive. और परमेश्वर आपको एक सही तरीके से आशीष देंगे ताकि आप ज्यादा काम ना करें या अपने आप पर ज्यादा दबाव ना डालें। He uses money to increase your wealth. और वो आपको पैसा देते हैं ताकि वो आपकी धनराशि बढ़ा सके। Why? क्यों? This is the way He blesses His people. इसी तरीके से वो अपने लोगों को आशीष देता है। Because He knows on the earth without money nothing happens. क्योंकि उसको पता है कि इस धरती पर बिना धन के कुछ नहीं होता। Every person on the earth is earning money. और हर एक व्यक्ति इस धरती पर कुछ धन कुछ पैसा कमा रहा है। And money is being given to them by God or by they following money. और पैसा उनको मिलता है या तो परमेश्वर से या तो वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं उससे। That means you can either serve God. If you are serving God, God gives you money, or you are serving money, that's why money is coming to you. और तो दो चीजें, या तो आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो जिससे परमेश्वर आपको पैसे दे रहे हैं, या तो आप पैसे की सेवा कर रहे हो जिससे आपको पैसा मिल रहा है। Now, the money which you are serving, और अभी आप जिस पैसे की सेवा कर रहे हो, if you are coming under that category, अगर आप उस भाग में आ जाते हो, the money which comes by serving money adds sorrow. तो जो पैसा आता है पैसे की सेवा करने से वो दुख को भी लाता है। But if you are serving God, परंतु अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, God says, if I give you money, I will not add any sorrow. परमेश्वर ये कहता है कि अगर मैं तुम्हें धन या पैसा दूंगा तो मैं उसमें कोई दुख नहीं डालूंगा। That means God's money which God gives unto us is not having sorrow, but it has a peace
and it talks about prosperity. इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर जब पैसा या धन दे रहे हैं तो वो दुख के साथ नहीं आ रहा है, परंतु वो शांति और सफलता के साथ आ रहा है। Now, what exactly when we talk about sorrow? और दुख का अर्थ क्या है जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं If तो? you are going behind money, और अगर आप पैसे के पीछे जा रहे हो तो, if you are serving money, अगर आप पैसे की सेवा कर रहे हो then तो money is going to control your life. तो पैसा आपके जीवन का नियंत्रण लेगा। Money is going to rule over you. पैसा आपके ऊपर राज करेगा। Your whole attention is to get money. और आपका पूरा जो है आकर्षण मकसद जो है वो सिर्फ पैसे लेने के पीछे चला And if you are जाएगा। going to do this, Bible says you love money. और अगर आप ये करोगे तो बाइबल कहती है आप पैसे से प्रेम करते हो। And then he says, the root cause of all evil upon this world is money. और फिर ये वो कहता है कि संसार में सारे बुराई और दुष्ट का जो जड़ है वो पैसा है। Now, when Iran is fighting against Israel, और जब ईरान इसराइल से लड़ रहा है only because they think that they are superior than Israel. इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि वो इसराइल से ज्यादा ऊपर है। They are thinking that Israel is below them. और उनको ये लगता है कि इसराइल उनके नीचे है। They have a desire to wipe out Israel from the surface of the earth. और एक जो उनका जो है इच्छा थी कि वो इस इसराइल को निकाल दे इस धरती में से। Now I want to tell you, every war which has been fought upon the earth, whether first war, second war, or the third war which is going to take place, all this war is just because of race of superiority. और मैं आपको बताना चाहता हूँ हर एक युद्ध जो इस धरती पर हुआ है, जो पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, जितने भी युद्ध हुए हैं वो सब एक ही चीज की वजह से हुआ है कि वो अपने आप को ज्यादा ऊपर और ज्यादा सर्वशक्तिमान मानते, अपनी जाति को ज्यादा ऊपर और सर्वशक्तिमान जानते हैं दूसरे से। My dear friends, every war which is taking place between human beings is just because of racism, just because of casteism, just because thinking that one religion is superior than the other religion. और इसी हर युद्ध जो हो रहा है इस संसार के ऊपर वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो ये जाति के ऊपर होता है, वो सांप्रदाय के ऊपर होता है और वो ये सोचते हैं कि मेरा धर्म आपके धर्म से ज्यादा बड़ा है, इसलिए होता है। Why? Because they want the throne above other person's throne. क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा सिंहासन चाहते हैं जो दूसरे व्यक्ति के सिंहासन के ऊपर हो। What do you mean by throne? I told you, it is power and authority. और मैंने आपको बताया था सिंहासन का अर्थ है सामर्थ्य और अधिकार। So please remember, और इसीलिए आप समझे this war basically initiated from heaven. और ये युद्ध स्वर्ग से आया। Now we came and we understood that because of the war which was in heaven and the Satan and his angels were fallen down, these people, the Satan and his angels, are spreading the same battle which was in heaven, making the human being trying to compare with each other. और अभी हम ये समझ गए कि जो युद्ध हुआ और शैतान और उसके जितने भी साथी थे वो नीचे गिर गए और अब इस धरती के ऊपर, और अब शैतान उसके जितने भी साथी है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि वो धरती के ऊपर भी युद्ध कर पाए। Now Satan takes the advantage of those people who love money. और अभी शैतान उन लोगों का फायदा उठाता है, वो लोग जो पैसे से प्रेम करते हैं, And then he start tempting them. और वो उनको और जो है उनकी परीक्षा लेता है By adding and showing them more glamorous things from money. और उस पैसे के साथ और जो है संसार का जितना भी अभिलाषा है वो दिखाता है। Now Satan is a defeated fellow. अब शैतान एक हारा हुआ व्यक्ति है, He cannot fight anything. वो किसी से लड़ नहीं सकता, He doesn't have an उसके ability. पास लड़ने की ताकत He नहीं has है। only one strength, that the strength is to tempt you. एक ही ताकत है उसके पास कि वो आपकी परीक्षा ले सकता है। He wants you to get away from God. वो चाहता है कि आप परमेश्वर से अलग हो जाओ, Because when God calls you,
you should be separated from him. कि जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो आपको उससे अलग रहना है। Now please remember, God has set you apart when he calls you that you are born again. और याद रखे परमेश्वर ने आपको अलग रख दिया है जब वो आपको एक नए जन्म करके बुलाता है। Now whatever the requirement is there of you upon the earth, God can also fulfill, money can also fulfill. और अब जो भी आपको जरूरत है इस संसार के ऊपर परमेश्वर भी पूरा कर सकता है और पैसा भी पूरा कर सकता That है। is why God says, money is my enemy. इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि धन जो है पैसा जो है वो मेरा शत्रु है। Now whoever serves God, और जो भी परमेश्वर की सेवा करते the हैं, basic requirement, Matthew 6:33, is already been declared by him. और जो सबसे जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत की जो चीज है मत्ती का 6वां अध्याय और 33 वो पहले ही बताया गया है। That seek ye first the kingdom of God and his righteousness, everything I will add unto you. और परमेश्वर और उसकी परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और मैं तुम्हें बाकी सारी चीजें दे So when you are serving God, you are assured everything will be provided, and this provision only comes by God adding money unto your life. और इसीलिए आपको ये समझना है कि जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो सब कुछ परमेश्वर ने ही दिया है और परमेश्वर जब देता है तो पैसे या धन के द्वारा देता है। Now why God makes you born again? और क्यों परमेश्वर आपको एक नया जन्म दे रहा है? Why? Because you who are separated from God should be once again associated with him. Your spirit should become alive, which was there. क्योंकि आप जो परमेश्वर से अलग हो गए थे वो फिर से परमेश्वर के साथ एक हो जाओ, मिल जाओ, क्योंकि आपका जो आत्मा मर गया था वो फिर से जीवित हो पाए। Hallelujah. हालेलुया। I hope so you are able to मैं understand. आशा रखता हूँ आप समझ रहे हो। Those who are serving money, और जो पैसे की सेवा कर रहे हैं they shall also get everything upon the earth. और उनको इस संसार पे सब कुछ मिलेगा। But my dear friend, don't forget, sorrow is added. पर मेरे प्रिय मित्रों हमेशा याद रखना कि दुख लेकर आएगा वो। And here when God adds money to your life, और यहाँ पर जब परमेश्वर आपके जीवन में पैसे को डालता है that means there is no sorrow. इसका अर्थ यह है कि कोई दुख नहीं है। You can enjoy everything peacefully. आप सब हर चीज का शांति प्रिय रीति से आनंद मना ले You सकते can enjoy through the joy which God has given to you. हो और आप आनंद ले सकते हो जो आनंद परमेश्वर ने आपको दे रखा है उससे। Life is full of enjoyment. और जीवन आनंद से भरा हुआ है। And happiness is surrounding you. और जो आनंद है वो आपके आसपास Now I एक want घिर to गया tell है। you, enjoyment, joy comes from God. Happiness comes from the things which God has given to us. और आनंद परमेश्वर से आता है और खुशी जो परमेश्वर ने चीजें दी है उससे आती है। So now your spirit is born again. कैसे तो आपकी आत्मा का एक नया जन्म हुआ है। Now the spirit of God is relating with your spirit. और परमेश्वर की आत्मा आपके आत्मा से मेल मिलाप कर रही है। God, Jesus and the Holy Spirit, all the triune God dwells in you. और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करते हैं। Now how this has become possible? और ये कैसे संभव हुआ है? That you accepted Jesus as your personal savior. ऐसे हुआ है क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता करके स्वीकार किया है। Now you have decided that God shall be your master. और अभी आपने ये निर्णय लिया है कि परमेश्वर आपके स्वामी होंगे। Now once you know this, और अभी एक बार आप इसको देखोगे तो once you know this, अभी आप इसको देखोगे तो now you have come to a level where you have understood that Satan is not a competitor. अभी आप एक ऐसे स्तर पे आ गए हो जहाँ पर आप ये समझ गए हो कि शैतान परमेश्वर का प्रतिस्पर्धी नहीं है। Now God wants you to fight against Satan. अभी परमेश्वर चाहता है कि आप शैतान के खिलाफ लड़ो। God wants to elevate you to wrestle against him. और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है कि आप उससे लड़ो। You can wrestle against the spirits which
the Satan wants to come against you. और आप लड़ सकते हो उन आत्माओं से जो आत्माएं शैतान चाहते हैं हमारे God खिलाफ is, आए। before God, Satan is too little. और परमेश्वर के सामने शैतान बहुत छोटा है, So God anoints you. इसलिए परमेश्वर आपको अभिषेक करता है। That is why Ephesians 6:12 says, और इसलिए एफिसियों का 6वां अध्याय और 12वीं आयत what कहती it है। says. क्या कहता है एफिसियों का 6वां अध्याय और 12वीं आयत? Our struggle is not against flesh and blood. क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। That means God is not anointing us to fight against man. और इसलिए परमेश्वर हमें अभिषेक इसलिए नहीं कर रहे कि हम मनुष्य से लड़े। Many people misunderstand this. बहुत सारे लोग इस को गलत समझते हैं। God defeats your enemy. परमेश्वर आपके शत्रु को हराता है। The enemy, which is the man which is trying to stand against you. और हराता है और वो उन मनुष्य को जो आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। This is what is mentioned in Psalms 110. और यही भजन संहिता 110 में लिखा गया है Against a man you need not fight. कि आप मनुष्य के खिलाफ आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। You have to fight against the principalities and the powers of the darkness. और आपको जो है प्रधानों से और अधिकारियों से लड़ना है। Why the anointing of God has come upon you? और क्यों परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आया है? Why there is an anointing upon you? और क्यों परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर So आया the है? first level of anointing which God has kept upon you after being born again is to fight against the power of the तो darkness. अभिषेक का जो पहला स्तर है जो परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा है वो ये है कि आप अंधकार से लड़ पाओ। Bible said that is the reason he has lifted you up and made you to sit in heavenly places. और बाइबल कहती है कि उसी कारण से उन्होंने आपको उठाया है और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। Every demonic force you need to fight against. आपको हर एक जो है अंधकार की शक्ति दुष्ट आत्मा की शक्ति से लड़ना है। That is basically our fight. और वही हमारी लड़ाई है। And not the fight between man to man. और मनुष्य से मनुष्य की लड़ाई नहीं है। God has anointed you, set you apart to defeat the demon. परमेश्वर आपको अभिषेक कर रहा है, आपको अलग रख रहा है ताकि आप ये दुष्ट आत्माओं को हरा पाओ। If you never have power to overcome the demons, you should understand that your relationship with God needs to be rectified. और अगर आपके पास कोई सामर्थ नहीं है कि आप दुष्ट आत्माओं को हरा पाओ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ आपको फिर से उस पर जाकर उसके बारे में सोचना पड़ेगा। Jesus said, in my name you are going to trample the serpent and the scorpion. और यीशु मसीह कह रहे थे कि मेरे नाम से आप जो है जो सांप है और जो बिच्छू है उसके ऊपर उसको आप रौंदोगे। The power which you carry is so powerful that they cannot harm you. और जो सामर्थ लेके आप चलते हो वो इतना सामर्थ्यशाली है कि वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। So remember, after you being born again, और इसीलिए याद रखें कि आपका नया जन्म होने से पहले the first level of anointing which God has kept upon you is not to fight man against man, but to fight against the principalities and the powers of the darkness. और अभिषेक का पहला स्तर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो ये है कि आप मनुष्य से ना लड़ो और आप जो है वो अंधकार के हकीमों दुष्ट आत्माओं उनसे लड़ो। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, I have taught you मैंने आपको सिखाया है the great things which the Lord has revealed. महान चीजें जो परमेश्वर ने बताई है। Mysteries and secrets are there in God's word. और रहस्य और गुप्त बातें परमेश्वर के वचन में हैं। There are many things which are not recorded which God wants us to understand. और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में नहीं लिखा गया जो परमेश्वर चाहते हैं हम And समझें। that is what God wants you to understand, and those are the mysteries. And when it comes to us, we say,
revelation. और वही चीज है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम समझे, और जब ये रहस्य हमारे पास आती है हम इसको प्रकाशन करके कहते हैं। Today, whom you are serving? और अभी आप किसकी सेवा कर रहे हो? Serving in the sense whom you love more, God or money. और आप किससे ज्यादा प्रेम करते हो, परमेश्वर या पैसा? You need not tell God. आप परमेश्वर को कुछ नहीं बोलो, You need not speak to Him. आपको जरूरत नहीं है परमेश्वर से God बात करने की। understands by our behavior, our character, our nature, and our decisions. और परमेश्वर हमारे ही व्यवहार करने के तरीके से, हमारे चरित्र से, हमारे स्वभाव। चुनाव से, हमारे स्वभाव से, हमारे जो है निर्णय हम लेते हैं उससे समझता है Whom we are serving. कि हम किसकी सेवा कर रहे God हैं। doesn't want you to disclose. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बोले। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, nobody can grow, nobody can say he loves God. और कोई नहीं कह सकता कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, Because God has already loved him. क्योंकि परमेश्वर ने पहले उनसे प्रेम किया है, Without any condition. बिना किसी शर्त के। So you don't understand that you don't need to build a relation is already been built up. इसलिए आपको समझना है कि आपको कोई रिश्ता नहीं बनाना है, रिश्ता पहले से बनाया है परमेश्वर What ने। we need to do is we need to grow in that love. और आपको क्या करना है, आपको जो है उस प्यार में बढ़ना है। And if you are growing in love means what? You are basically getting the benefits which God has kept for और you. उस प्रेम में बढ़ने का अर्थ क्या है? जो परमेश्वर ने आपके लिए चीजें रखी है वो आपको मिलेगी, फायदे. फायदे। I hope so you understand. और मैं आशा रखता हूँ कि आप ये So समझोगे। today is your choice. तो आज आपके पास एक चुनाव I है, hope so you understand. मैं आशा रखता हूँ कि आप ये समझ रहे हो Who is God's competitor? कि परमेश्वर का प्रतिस्पर्धी कौन है। Do you love him? क्या आप उससे प्रेम करते I हैं? will not ask this question. मैं ये सवाल नहीं I पूछूंगा, will say, whom do you serve? और मैं ये सवाल पूछूंगा कि आप किसकी सेवा कर रहे हो, Whose devotee you are? और आप किसके पीछे हो, Upasana. किसकी उपासना कर रहे हो। Are you devotee of God or are you devotee of money? क्या आप परमेश्वर की उपासना कर रहे हो या आप धन की उपासना कर रहे हो। Till today, if you lack anything, और आज तक अगर आपको किसी चीज की घटी है, I want you to just raise up your hand. मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों को उठाए। Principles are laid down in the Bible to receive things. और सिद्धांत लिखे गए हैं बाइबल के अंदर कि आप चीजों को ले पाओ, Guidance are already been given through the word. और मार्गदर्शन वचन से दिया जा रहा है। Whatever you lack, you need to sow those things. और जिस चीज की भी आपको घटी है वो चीजें आपको बोना है। And once you sow that, God will give you pressed down, shaken together and और overflowing. एक बार वो आप बो देते हो तो परमेश्वर आपको जो है हिला हिला के दबा के और उमड़ता हुआ देंगे। I will repeat. मैं फिर से बोलूंगा, When God gives you money, जब प्रभु आपको धन देते हैं He doesn't add sorrow. वो उसमें दुख को नहीं डालते। There are people in the world और संसार में लोग who हैं has lot of money, जिनके पास बहुत सारा पैसा but they है don't have health. पर उनके पास स्वास्थ्य नहीं They है, don't have peace. शांति नहीं They are है, frustrated. और वो बिल्कुल भी जो है तनाव में है। They are so much in debts, but they enjoy the money. और इतने कर्ज में है पर फिर भी पैसा का आनंद ले रहे हैं। Let me tell you, my dear मैं friends, आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय those who are मित्रों, blessed by God, जो परमेश्वर से आश्रित होते हैं, whom God blesses with money, they are never in debt. जिनको परमेश्वर आशीष देता है पैसे से, वो कभी कर्ज में नहीं रहते। Let's lift both of our hands today. और आइए हम अपने दोनों हाथों को उठाए आज, And as God has given us a new और revelation, जैसे परमेश्वर ने हमें एक नया प्रकाशन दिया है, just say to God, God, I want to serve you from my और heart. परमेश्वर को कहे कि परमेश्वर मैं अपने हृदय से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, Lord, please forgive me where I have gone और wrong. परमेश्वर कृपया करके आप मुझे क्षमा करें जहाँ पर भी मैं गलत Let किया me हूँ। tell you, my dear friends, as you elevate thoughts of yours in equal to God, God will bring new revelation to you. और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्रों, जैसे आप अपने विचारों को ऊपर लेकर जाते हो तो परमेश्वर आपको अच्छे विचार देंगे। Thank you, God, for revealing that truth that Satan is not your enemy. और धन्यवाद प्रभु एक ऐसा सच को बताने के लिए कि शैतान आपका
प्रतिस्पर्धी या शत्रु Many नहीं times, है। Lord, we elevated him to that level and thinking that he is your competitor. और बहुत बार हम उसको उस स्तर पर लेकर जाते हैं ये सोचकर कि वो आपका प्रतिस्पर्धी है। Thank you, Master, for revealing new things. धन्यवाद स्वामी नई चीजें बताने के I लिए। speak good health in Jesus' name. मैं अच्छी स्वास्थ्य यीशु मसीह के नाम से कहता I हूँ। speak for peace and prosperity in Jesus' name. मैं परमेश्वर शांति और यश को यीशु मसीह के नाम से कहता I हूँ। say overflowing blessing in Jesus' name. मैं उमड़ता हुआ आशीष को यीशु मसीह के नाम से I कहता say हूँ। for the Spirit of God to come upon every viewer today that they shall serve you wholeheartedly. मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा हर एक व्यक्ति जो देख रहा है उसके ऊपर आए ताकि वो आपकी सेवा कर पाए। Thank you, Master, for entering into that family, the family which is disturbed even though they have money. और धन्यवाद स्वामी उस परिवार के अंदर जाने के लिए जिस परिवार में पैसा है पर वो उनमें शांति नहीं है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ every infighting to go in Jesus' हर name. एक अंदर की लड़ाई चली जाए यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Master. धन्यवाद स्वामी। Thank you, God, for bringing us close to you through new revelation. धन्यवाद स्वामी हमें आपके पास लाने के लिए नए प्रकाशन से। Bless every person who has listened today. और हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है उसको आशीष दे आप In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से हम May the प्रार्थना love of करते हैं। God, परमेश्वर पिता का the प्रेम grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह and the communion of the Holy और Ghost पवित्र आत्मा की shall be संगति with us forever and हम ever. सबके साथ रहे अब और हमेशा के लिए। Amen. आमीन। Our number is coming on the screen. हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है If you have any prayer request, please send the message. और अगर आपके पास कोई प्रार्थना विनंती है तो आप कृपया करके वो मैसेज को डालें। If you want to give towards this ministry, our account details are coming down. और अगर ये सेवाकाई को आपको देना है तो हमारा अकाउंट डिटेल्स नीचे आ रहा है। I hope so. You have liked what God has spoken. और मैं आशा रखता हूँ कि आप ये समझेंगे आपको पसंद आएगा जो परमेश्वर ने If बात you किया have है। liked the message, please put a like such that this video will be for longer time. और अगर आपको ये संदेश पसंद आया तो आप एक लाइक बटन दबाएं ताकि ये वीडियो जो है वो काफी समय तक रह पाए। Share with every person who is running the race in this world only for the sake of money. हर एक व्यक्ति को बांटे जो इस संसार में चल रहा है सिर्फ पैसे के लिए। Thank you and God bless you. धन्यवाद और प्रभु आपको आशीष दे। If you have not subscribed us, subscribe us. Every week you will get the holy और word. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करें। हर हफ्ता हम इस वचन को लेकर आते हैं। Thank you and God bless you. धन्यवाद प्रभु आपको आशीष दे।